امریکی حکومت نے آج سے میکسیکو اور کینیڈا میں 25% ٹیرف نافذ کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق یکم فروری سے چین پر 10% ٹیرف نافذ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ نے بریفنگ میں بتایا ہے کہ امریکی صدر نے ابھی تک یورپی یونین کے خلاف ٹیرف نافذ کرنے سے متعلق حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو منگل کو امریکہ کا دورہ کریں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی کریں گے۔ اس سے قبل کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے ٹیرف کے معاملے پر کہا تھا کہ امریکہ نے ٹیرف لگایا تو کینیڈا فوری اور زبردست جواب دے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہتے لیکن ایسے اقدام کا فوری جواب دیں گے۔ امریکی حکومت نے آج سے میکسیکو اور کینیڈا پر 25% ٹیرف نافذ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ تیل اور گیس پر 18 فروری سے ٹیرف لاگو کریں گے۔ روس کے ساتھ سنجیدہ بات چیت چل رہی ہے۔ ٹیرف کے نفاذ پر کینیڈا، میکسیکو اور چین کچھ نہیں کر سکتے۔ یورپی یونین پر بھی ٹیرف نافذ کریں گے۔ ٹیرف کے نفاذ سے مارکیٹ کے رد عمل پر تشویش نہیں۔ بائیڈن دور میں محکمہ انصاف نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا۔ میڈیا انتظامیہ نے سرکاری اداروں کو کرپٹ کیا۔ بھارت خالصان تحریک کے رہنماؤں کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے کہا ہے کہ مودی حکومت امریکہ اور کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ بھارتی میڈیا میں کئی دنوں سے نیشنل سیکیورٹی اجلاس کو حوالہ دیا جا رہا ہے۔ سکھ فار جسٹس سیاسی تنظیم ہے اور ہمیں بھارت سے علیحدگی چاہیے۔ امریکہ میں 23 مارچ سے خالصان ریفرینڈم کا آغاز کر دیا جائے۔ مجھے امریکی سرزمین پر قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ سے درخواست ہے کہ بھارتی حکام سے فوری رابطہ کیا جائے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کینیڈا کا انڈیا پر جمہوری اور انتخابی اداروں پر مداخلت کا الزام سامنے آ گیا ہے۔ کینیڈا کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت پر نظر رکھنے والے کمیشن نے انڈیا پر الزام عائد کیا ہے کہ انڈیا کینیڈا کے وفاقی انتخابات اور جمہوری اداروں میں مداخلت کرنے والا دوسرا سب سے متحرک اور سرگرم ملک ہے۔ انڈیا پر جمہوری اور انتخابی اداروں میں مداخلت کا الزام۔ کینیڈا کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت پر نظر رکھنے والی کمیشن نے انڈیا پر الزام عائد کیا کہ انڈیا کینیڈا کے وفاقی انتخابات اور جمہوری اداروں میں مداخلت کرنے والا دوسرا سب سے متحرک اور سرگرم ملک ہے۔ کمیشن کی سربراہ جسٹس میری ہوزک ہاگ نے دعویٰ کیا کہ انڈیا کینیڈا میں اپنے سفارتی عملے اور ایجنٹس کے ذریعے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا انڈیا نے کینیڈین ایجنٹس کے ذریعے خفیہ طریقے سے ناجائز مالی اعانت کے ذریعے انتخابات میں انڈیا کے حامی امیدواروں کی جیت اور منتخب ہونے والے رہنماؤں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ دوسری جانب انڈیا نے رپورٹ میں لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کینیڈا پر انڈیا کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا جوابی الزام عائد کر دیا۔ ستمبر 2023 میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے سکھ علیحدگی پسند ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں انڈیا کے حکومتی ایجنٹ ملوث ہونے کے بیان پر دونوں ممالک کے تعلقات متاثر ہوئے تھے۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول ₹1 فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ پیٹرول فی لیٹر کی نئی قیمت ₹257.13 ہو گئی۔ ڈیزل ₹7 فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی فی لیٹر نئی قیمت ₹267.95 مقرر کر دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا ایک اور خط سامنے آ گیا۔ خط میں کہا گیا کہ دوسری ہائی کورٹ سے جج نہ لایا جائے، نہ چیف جسٹس بنایا جائے۔ جسٹس محسن اختر کیانی سمیت مختلف ججز نے خط لکھا ہے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی 3 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس بنایا جائے۔ ججز کی جانب سے صدر پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خط کی کاپی بھجوا دی گئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی کاپی بھجوا دی گئی۔ خط میں لکھا گیا کہ دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے وجوہات دینا بھی ضروری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نسبت لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا کیسز 2 لاکھ ہیں۔ پی ٹی آئی والے فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ مذاکرات کو آگے نہیں لے کر جانا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی لچک دکھائی۔ پی ٹی آئی والے مذاکرات میں غلطی سے آ گئے تھے۔ مذاکرات ان لوگوں کا ایریا آف ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے۔ عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ وہ اب اپنی اسپیشلائزیشن کی جانب چلے گئے ہیں۔ ان کی اسپیشلائزیشن کا ایریا راستے روکنا، حملے کرنا اور دھرنے دینا ہے۔ وہ پہلے کریں، ریاست اپنے شہریوں کے وقار کا دفاع کرے گی۔ حکومت مذاکرات کی ٹیبل پر بھی کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکی۔ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ حکومت آگے کے لیے کیا منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ ہمارے ایم این اے غوث کو اٹھایا گیا، 48 گھنٹے سے لاپتہ ہے۔ طاقتور حلقوں کے آن بورڈ ہونے
बगैर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी नहीं कुछ कर सकती। जमहूरियत के चैंपियन बनने वालों को जमहूरी हक देने में तकलीफ क्यों है? 2.5 साल का हिसाब मांगा जाता है, 30 साल का हिसाब कौन देगा? तहरीक इंसाफ डेडलाइन के बाद कहे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ को डायलॉग में रहना चाहिए, डेडलॉक नहीं होना चाहिए। अब पीटीआई को 26 नवंबर भी समझ आई तो 8 फरवरी को देख लें। पीटीआई ने जिस तरीके से निज़ाम हुकूमत चलाया, हम भी वैसे ही चला रहे हैं। पार्लियामेंट में सहूलियात इंजॉय करें और कहें कि इनकलाब लाना है, ऐसे इनकलाब आता है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज, शहर शहर एहतजाजी रैलियां। पीका एक्ट के खिलाफ आज़ादी सहाफ़त के हक में नारेबाजी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर शहरों में प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए गए। सहाफ़ियों ने हुकूमत से पीका एक्ट को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर मुल्क भर में यौम स्याह मनाया गया। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए गए। सहाफियों की जानिब से एहतजाजी रैलियां निकाली गई। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर स्याह परचम लहराया गया, जबकि सहाफियों ने पीका एक्ट के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। सदर पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट समेत दीगर कायदीन ने शिरकत की। सहाफी कहते हैं पीका एक्ट के खिलाफ जदोजहद जारी रहेगी, आजादी सहाफत पर आंच नहीं आने दी जाएगी। पीका काले कानून के खिलाफ PFUJ के यौम स्याह की कॉल पर कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जेर तमाम कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। प्रेस क्लब पर स्याह परचम लहराया गया। सहाफियों के पीका एक्ट नामंजूर के नारे। पीका एक्ट के खिलाफ लाहौर में सहाफती तंजीमों का एहतजाज। कायदीन और कारकुन पीका एक्ट के खिलाफ फट पड़े। सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी कहते हैं पीका एक्ट के काले कानून के खिलाफ हर प्लेटफॉर्म पर एहतजाज करेंगे। इस एक्ट की मौजूदगी में सहाफी अपना किरदार अदा नहीं कर सकते। रहीम यार खान में भी सहाफी पीका एक्ट के खिलाफ सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब पर स्याह परचम लहराया गया। भावलपुर में भी सहाफियों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। पीका एक्ट के खिलाफ और आजादी सहाफत के हक में नारेबाजी की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह अतारा ने कहा है कि पीका एक्ट पर बातचीत के लिए तैयार हैं। मुशावरत में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। पीका एक्ट का बुनियादी मकसद सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाए जाने वाले नुकसानात का तदारुक करना है। पीका एक्ट सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और ख़तरात के तदारुक के लिए लाया गया है। यह कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो सोशल मीडिया की जो अब्यूज़ है, सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है और सोशल मीडिया के जो ख़तरात हैं, उसके तदारक के लिए ये एक पीका लॉ जो है ये लाया गया। अभी बहुत गुंजाइश है बातचीत की भी, बहुत गुंजाइश है मुशावरत की भी, और मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ वो गुंजाइश मौजूद है बल्कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और सोशल मीडिया की अब्यूज़ को रोकने के लिए एक अच्छा काम किया गया है। तो मेरा ख्याल है तमाम जर्नलिस्ट बॉडीज़ को इसको सपोर्ट करना चाहिए। सियासी कारकुन हूँ, मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ। मुज़ाकरात पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। इस हुकूमत में इतनी क़ुव्वत नहीं कि एक दिन भी चल सके। इस हुकूमत को जो लाए वही चला भी रहे हैं। KPK में जो हालात हैं, पंजाब में इसका एहसास नहीं हो रहा। रियासत की सतह पर बलूचिस्तान की सूरत हाल को संजीदा लेना पड़ेगा। पीका एक्ट के मामले पर मौलाना फजल रहमान बोले कि पीका एक्ट पर सहाफ़ियों की तजावीज़ ली जाएँ। दोनों को कोई मामला तय करने का इख्तियार नहीं है। जो लोग इख्तियार रखते हैं अगर वो रब्ता करेंगे तो फिर सोच सकता हूँ। उनको अपनी पार्टी के अंदर ही इसका एहतसाब कर लेना चाहिए। रास्ते गैर महफूज हैं, मुसाफिर गैर महफूज हैं और भत्ते लोगों से लिए जाते हैं, लोगों को लूटा जाता है। इंसानी स्मगलिंग जो है एक इंतहाई घिनौना धंधा है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सबसे बढ़कर अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो इंसानी स्मगलिंग होती है, शायद उसकी बराबरी कोई दूसरा मुल्क कर सकता हो। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की बात करेंगे। दुनिया क्रिकेट का मुनफरिद रिकॉर्ड, सिर्फ 110 रोज़ में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का 99% काम मुकम्मल। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ फ्लोर्स और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। बॉक्सेस के बाहर लगाई गई नशिस्तों पर बैठकर ग्राउंड के व्यू को देखा। चेयरमैन PCB की फिनिशिंग वर्क को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने वाले शायकीन नए स्टेडियम की सहूलियात से लुत्फानंदोज हो सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच की समाअत पीर तक मुलतवी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि रोज़ सुनने में आता है कि इतने जवान शहीद हो गए, हमलावर सिविलियंस होते हैं। 2D 1-2 के कलदम होने पर मुलजिम का ट्रायल कैसे होगा? इस वक्त मुल्क के 2.5 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं। कहा कि मुल्क में मुक्ति बाहिनी की तहरीक नहीं, हमलावर सिविलियंस ही हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि FBI फैसले के लिए अदालतों में तौसीक की गई। 21 तरामीम का फैसला 17 जजेस का है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आइन से मनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि आपके मुताबिक सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होना चाहिए। बानी पीटीआई की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी एक्ट तरमीम 2023 के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आइनी बेंच 7 फरवरी को समाअत करेगा। बानी ने इस्तदा की कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम 2023 को खिलाफ आइन करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात, बेटों से फ़ोन पर बात और दीगर जेल सहूलियात फराहमी का केस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि सुप्रिटेंडेंट जेल के मुताबिक बानी पीटीआई का मुस्तकिल बुनियादों पर मेडिकल चेकअप होता है। अगर किसी किस्म की कोई शिकायत हो तो मुनासिब इंतज़ाम करके प्राइवेट तौर पर भी चेकअप करवाया जा सकता है। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में बैरून मुल्क फ़ोन कॉल की सहूलत मौजूद नहीं है। बैरून मुल्क फ़ोन कॉल की सहूलत तब दी जाती है जब अदालती ऑर्डर मौजूद हो। बानी पीटीआई की जानिब से वकील फैसल चौधरी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। 9 मई को बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद 10 मई को फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने पर 10 पीटीआई कारकुनान की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सुनाई गई सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। आपको बताएं कि लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस शाहदरा के करीब हादसे का शिकार, वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। शालीमार एक्सप्रेस हादसे की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि शालीमार एक्सप्रेस की शाहदरा के करीब 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह गाड़ी पटरी से डीरेल हुई। रेलवे हुकाम ने हादसे की जिम्मेदारी ड्राइवर पर डालकर कार्रवाई शुरू कर दी। हुकाम के मुताबिक ट्रेन के डीरेल होने के बाद भी ड्राइवर ने ओवर स्पीड जारी रखी। शालीमार एक्सप्रेस शाहदरा पुल से 1.5 किलोमीटर पहले डीरेल हो चुकी थी मगर ब्रेक नहीं लगाई गई। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब नहीं सिंध में पहले इलेक्ट्रिक बसें चलीं। शर्जील इनाम मेमन ने मरियम नवाज के दावे की तस्दीक कर दी। सिंध के सीनियर वजीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर मरियम नवाज के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा है कि पंजाब नहीं सिंध वो पहला सूबा है जहां इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब दूसरा सूबा है जो EV बसें ला रहा है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जनवरी 2023 में ही इलेक्ट्रिक बसें शुरू कर चुकी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जील इनाम मेमन को जवाब देते हुए कहा कि समझ नहीं आ रही कि आजकल आप लोग इतने गैर महफूज क्यों हो रहे हैं। पहले ताजरों की मजाक में की गई गुफ्तगू पे इनको बुलाकर झाड़ पिलाना और अब ये। वैसे ऑरेंज लाइन, 3 मेट्रो, स्पीडो बसेस, इलेक्ट्रिक बाइक्स के बाद इलेक्ट्रिक बसें अगला कदम है। वैसे सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की असल सूरत हाल और कहानी फिर सही। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सेनेटर फैसल वावडा के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। सेनेटर फैसल वावडा ने FBI अफसरान की जानिब से कत्ल की धमकियों का इल्ज़ाम लगाया था। एसोसिएशन के बयान के मुताबिक अफसरान ने कोई धमकियां नहीं दी। अफसरान को बदनाम करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। फैसल वावडा इल्ज़ामात के सबूत पेश करें। बेबुनियाद इल्ज़ामात और बेबुनियाद अफसरान के खिलाफ हौसला पस्त नहीं हो सकता। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन का दावा है कि सरकारी गाड़ियों की खरीदारी कवायद के मुताबिक हुई है। एलामिया में कहा गया कि टैक्स वसूली के अमल को नुकसान पहुंच सकता है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस अफसरान ईमानदारी और पेशावराना उसूलों पर कारबंद हैं। अफसरान की इज्जत व वक़ार का हर हाल में दिफा करेंगे।
हुकूमत की जानिब से अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। इजाफे के बाद अरकान असम्बली को 5,19,000 रुपये मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाह 9 साल बाद बढ़ी है। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला फाइनेंस कमेटी ने किया था। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की तनख्वाह नहीं बढ़ी। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह में भी इजाफा नहीं किया गया। ज़राए कौमी असम्बली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह फाइनेंस कमेटी नहीं बढ़ा सकती। कुरम में अमन मुआहदे के लिए जिरगा, फरीकैन का मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कमेटियां बनाने का फैसला। कुरम अमायदीन की मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी। पुलिस के मुताबिक जिला कुरम के इलाके बोशरा में होने वाले फायरिंग के वाक़े में मजमूई तौर पर 9 अफराद जख्मी हुए। असिस्टेंट कमिश्नर को पाराचनार अस्पताल में तिब्बी इमदाद देने के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। वीकेंड का मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कमेटियां बनाने का फैसला। कुरम उमायदीन के मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी। अपर कुरम के इलाके बुशरा में फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर सैयद मन्नान जख्मी। असिस्टेंट कमिश्नर फायरबंदी के लिए पुलिस के हमरा बुशरा गए थे। असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाराचनार मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आला अली गंडापुर की सरबराही में काबीना ने सरकारी हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस में तब्दील करने की मंजूरी दी। बैरिस्टर सैफ कहते हैं हेलीकॉप्टर की मॉडिफिकेशन करके एयर एम्बुलेंस में तब्दील किया जाएगा। वजारत खजाना खैबर पख्तूनख्वा एविएशन को एयर एम्बुलेंस के लिए फंड फराहम करेगी। कहा वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर पहले ही से कुरम में अद्वियात की सप्लाई और फंसने वाले अफराद को निकालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यूरोपीय यूनियन के वफ्द का पाकिस्तान का दौरा। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे खुसूसी ने चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की। अदलिया की सालमियत और आज़ादी पर बातचीत की गई। यूरोपीय यूनियन के वफ्द की मुलाकातों का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया कि इंसानी हुकूक और ठोस इस्लाहात ज़रूरी हैं। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे खुसूसी ने चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की। जुडिशल बैकलॉग के साथ साथ अदलिया की सालमियत और आज़ादी पर बातचीत की। नुमाइंदा खुसूसी ने इंसानी हुकूक कमीशन की आज़ादी को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। नुमाइंदा खुसूसी ने तमाम मुतलका बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की बातचीत की। नुमाइंदा खुसूसी के वज़ीर आला पंजाब और अक़लियती उमूर के वज़ीर सरदार रमेश सिंह से भी मुलाकात हुई। फैसलाबाद में मुसल्लह अफराद ने थाना तांदलियावाला के बाद चौकी लारी अड्डा पर हमला कर दिया। हमलावर फायरिंग करते अपना साथी थाने से छुड़ा कर ले गए। आईजी पंजाब ने आरपीओ फैसलाबाद को चार्ज छोड़ने से रोक दिया है। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद से मुसल्लह अफराद ने थाना तांदलियावाला के बाद चौकी लारी अड्डा पर हमला कर दिया। हमलावर फायरिंग करते अपना साथी थाने से छुड़वा कर ले गए। आपको बताएं कि आईजी पंजाब ने आरपीओ फैसलाबाद को चार्ज छोड़ने से रोक दिया। आपको बताएं कि मरी में तवील खुश्क साली के बाद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। बर्फबारी के बाद मौसम नहायत सर्द हो गया। मुल्क भर से आने वाले सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। महकमा मौसमियात ने पेश गोई की है कि बर्फबारी का ये सिलसिला अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। मुल्क भर से आने वाले सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने लगे हैं। बर्फबारी का ये सिलसिला अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है मरी में तवील खुश्क साली के बाद पहली हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है।